Okay, we are starting with illustration number 5.13, and this particular illustration gives us the detail that the three houses are owned by X and all the houses are self-occupied. Now, when we talk about the houses are self-occupied, then we have to understand that in the self-occupied house property, NAV of the house property shall be taken as nil, right? So when the NAV of the house shall be taken as nil, this particular exemption can be claimed for two of the houses, any of the two of the houses. तो अगर इस केस के अंदर हमारे पास तीन हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो तीन हाउस प्रॉपर्टी में से हमें दो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेनी है, ठीक है, और रिमेनिंग वन जो है हमारी वो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी. तो जो आउट ऑफ द थ्री हमें ये देखना है कि द ऑब्जेक्टिव कि किस बेसिस पे हम कोई एग्जाम्पशन लेते हैं कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हमारी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है. तो जब टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम कब होगी, तो उन जिन दो हाउसेस की हमारी इनकम ज्यादा होगी उनको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर लेंगे, और जिस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कम होगी उसको हम डीम टू बी लेट आउट ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट तो हमारी इनकम टैक्स हो जाएगी, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी. तो जनरली हम देखते हैं कि किस हाउस प्रॉपर्टी की आपकी ईआरवी ज्यादा है, या फिर उसके साथ हमें देखना पड़ता है कि उसके अंदर हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही. तो अब ये हमारा थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही है, तो उस केस के अंदर अगर एम्प्लॉय जो है वो ऑप्ट कर रहा है आपका अंडर सेक्शन टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, तो उस केस के अंदर जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, राइट. So in this case, we have to be little wise when we decide about that which of the two houses to be treated as self-occupied. So now let's start the question that in case of that we treat all the three houses as self-occupied, then what is going to be our income? And then we will see that which of the two houses have higher income, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा उसके अंदर एग्जाम्पशन लेने का, रीजन बीइंग कि हमें जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम करनी है. तो इस केस के अंदर इफ यू सी द क्वेश्चन, वी लेट्स टेक हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3. then in this case, first of all, when we talk about the NAV, so NAV is to be taken as nil, but in this case we have to decide about the exemption that which of the two houses to be treated as you can say to be treated as self occupied. तो इस केस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों हाउसेस को पहले डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और तीनों हाउसेस को फिर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे. तो व्हेन वी ट्रीट द थ्री हाउसेस एज डीम टू बी लेट आउट, तो उस केस के अंदर हमें जो हमारी जीएवी होती है वो हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू जो है वो बन जाती है. तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विल बिकम जीएवी इन three of the houses. So if you see how we calculate the expected rental value, that we select higher of the municipal value and fair rental value, and this higher value is compared with the standard rent, and the lower of the two is taken as ERV. So this ERV will become GAV. So if you see the illustration 5.13, so with respect to house 1, municipal value is given 60,000, fair rental value is given 72,000, and there is no standard rent. So in this case, the higher value of the municipal value and fair rental value will become the ERV. So here this will be 72,000 will become GAV for the first house. Then in second case, second house, the municipal value and fair rental value is given 90,000 and 1,20,000. Standard rent is given 1 lakh. So out of the two, 1,20,000 is higher. But when we compare it with the standard rent, then 1 lakh will be lower, right? So in this particular case, 1 lakh will become GAV. In case of the third house, municipal value is 72,000, fair rental value is 80,000, and there is no standard rent is given. So higher of the two, 80,000 shall become GAV. Then the date of completion of construction is given 94 May.
दूसरा हाउस भी 94 में और तीसरा हाउस 2014 में। तो अगर आपको याद हो कि अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते थे तो उस केस में हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर डिडक्शन 30,000 और 2 लाख में डेट ऑफ लोन मैटर करता था और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैटर करता था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो सब डिटेल्स नहीं दी हुई है। सो द सिंप्लीफाइड municipal taxes are given 6,000, 9,000 and 7,000. So we will reduce these three values 6,000, 7,000 and 9,000. Right? So when we reduce municipal taxes let out house property में तो allowed है, तो इस केस के अंदर हमारे पास NAV जो है after deducting these value how much it will come? Can you please tell me the figures? मैम 60 सेकेंड हाउस में शायद 9,000 है. Okay, right. I have written second house में 9,000 है and third house में 7,000. Right, please let me know the values. मैम फॉर फर्स्ट हाउस इट इज 66,000, Mm-hmm. for second it is 91,000 and for third 73,000. Okay, so now we have to reduce the standard deduction. 24A में statutory deduction जो है this is 30% of NAV. तो 30% of NAV calculate कर लो कितना आ रहा है. I'm 19,800 for the first house. Okay. 27,300 for the second house. Okay. And 21,900 for the third house. Okay. So now आप because इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं दिया हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया होता तो वो पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है रिस्पेक्टिव हाउसेस में माइनस हो जाता. So now because interest is not given, so the remaining value will become our we can say the value or income from these deemed to be let out house property. So we can switch to the next sheet and you can tell me the value of all the three houses. This is income from deemed to be let out house property. House 1, house 2 and house 3. Just tell me after deducting the statutory deduction of 30%. Ma'am, first house is 46,200. Okay, 46,200. Second house is 63,700. दोबारा बताओ. I'm 63,700. 63,700 and third house 51,000. 51,000. Okay, so now in this case, if we see that if we treat these three houses as deemed to be let out house property, तो इस केस के अंदर हमारी इनकम यहाँ पे ज्यादा आ रही है और यहाँ पे ज्यादा आ रही है. तो अगर हम इन दोनों हाउसेस को ले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बेटर रहेगा. बट लेट्स डू द कैलकुलेशन कि अगर हम इन सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हाउस 1 को तो हमारे हाउस 1 से जो इनकम होती या जो लॉस होता वो कितना होता. कैलकुलेट करो. इफ वी ट्रीट द फर्स्ट हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो अगर हम फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते तो हमारी एनएवी नील आती, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील आती, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमारा है नहीं तो इस केस में भी नील आता. सेकंड हाउस के अंदर भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं है तो नील आएगा. थर्ड केस में भी हमारा जो इनकम है वो नील आएगी. So it means that if we treat first house as self-occupied house property, the income is going to nil. Second is house को लेंगे तब भी nil आएगा. थर्ड हाउस को लेंगे तब भी nil आएगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते कैसे हैं कि that NAV is to be treated as nil. ठीक है. And deduction under section 24A 30% of NAV is going to be nil. 24B की जो डिडक्शन है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है. इंटरेस्ट अमाउंट 30,000 और 2 लाख. ठीक है, उसके अंदर डिपेंड करता है. कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर आपकी जो इंटरेस्ट है आपका रिपेयर रेनोवेशन एक्सेट्रा के लिए लेंगे तो मैक्सिमम लिमिट हमारी जो है वो 30,000 है. इंटरेस्ट अमाउंट और 30,000 विच एवर इज लोअर.
अगर आपका लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है और 5 साल के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई हुई है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 2 लाख विच एवर इज लोअर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। लेकिन अगर एम्प्लॉय 115 BAC के अंदर ऑप्ट करता है टैक्स होने के लिए, तो उस केस के अंदर आपकी ये डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलाउड नहीं होती। सो बाय चांस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटरेस्ट अमाउंट इज नॉट गिवन, डिफिकल्टी लेवल इज less to understand the concepts only. So in all the three cases, the income from हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की हमारी तीनों केसेस में नील आ रही है। तो अगर हम देखें, तो अगर हम डीम टू बी लेट आउट लेते, ठीक है, तो अगर हम दो फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखो कि अगर हम फर्स्ट 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले और तीसरे को हम डीम टू बी लेट आउट ले, तो हमारी इनकम 51,000 हो जाएगी। अगर हम सेकेंड एंड थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्जम्पशन लेते हैं, तो हमारी इनकम 46,200 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्जम्पशन ट्रीट करते हैं, तो हमारी इनकम 63,700 हो जाएगी। तो आउट ऑफ द 3, तो हमारी इसके अंदर अगर हमारी इनकम कम होगी तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। अब इस टाइम इस कंडीशन पे मत जाना कि मैम फर्स्ट 2,50,000 तो एग्जाम्प्ट होता है। दिस इज यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कि और इनकम भी तो हो सकती है। तो उस केस के अंदर 46,200 जो है बीइंग गिविंग द लेसर वैल्यू, सो इट मींस दीज टू शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो हमें सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर एग्जम्पशन मिलती है। तो सेल्फ ऑक्यूपेंसी एग्जम्पशन हम इन दो प्रॉपर्टीज के लिए लेंगे, एंड वी विल ट्रीट द फर्स्ट हाउस एज deemed to be let out house property। तो इस तरह से दिस 46,200 है, आपकी इनकम 40 lakhs भी हो सकती है, 4 lakhs भी हो सकती है। तो जहां पर जिस कॉम्बिनेशन में हमारी इनकम सबसे कम होगी, जिसके अंदर हमें टैक्स लाइबिलिटी कम होगी, उसके अंदर हमें इसको देखना है। इज इट फाइन? समझ में आ गया बच्चे ये कॉन्सेप्ट? यस और नो? जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, सो हमें ये देखना है बेटा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा हाउस है, तो हमारी जो टोटल इनकम है इस हेड में, कहाँ पे हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते और सेकंड हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते, तो हमारी इनकम फर्स्ट हाउस की नील हो जाती, सेकंड हाउस की नील हो जाती। लेकिन थर्ड हाउस की इनकम, क्योंकि वो तीसरे हाउस में हमें एग्जम्पशन नहीं है, तो वो डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो उस केस में हमारी इनकम 51,000 हो जाती। तो अगर हम ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन 1 के अंदर हमारी इनकम जो है 51,000 आती है। ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते कि आप फर्स्ट को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, इसको डीम टू बी लेट आउट मानो, और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, तो डीम टू बी लेट आउट की इनकम 63,700 टैक्सेबल हो जाएगी। ऑप्शन 3 के अंदर फर्स्ट को आप डीम टू बी लेट आउट मानो, सेकेंड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो। तो फर्स्ट केस में डीम टू बी लेट आउट की इनकम 46,200 है शायद, तो हमारी इनकम ये हो जाएगी, क्योंकि बाकी दो इनकम तो हमारी नील है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? That is that where you wish to avail the exemption, the choice is available with the assessee. Right? Is it clear? Yes? Yes, ma'am. Okay. So now let's move to another question. And I will be sharing, or I am expecting, though it's a festival time, but I really want all of you that you please spare at least half an hour to 1 hour daily, so that you can practice the practical question of the house property. Then we'll have the problem class or doubt class on Monday. Right? So next illustration says 5.14, which I have shared with you on your group. So in this case, again, there are 3 houses, and it is given that the house 1 particulars are being given, house 2 particulars are being given, and in this case, it is being said that if these houses are there, so in that case,
what should be whether the employee should opt for 115 BAC or not. So can we discuss this particular question, or shall I discuss the question with respect to self-occupied and let out? I think we should discuss that question first. These options we can discuss later on. Let me see a question. Okay, just write down the question. It says, we'll discuss it later. Let's leave it for later. Let's discuss another problem where it says that R owns a property in Delhi. Okay. Unit A has 60% floor area and unit B has 40% floor area. Okay. Unit A is self-occupied for 8 months and rented from, that is let out from 1st of December 2020 and let out at the rate of rupees 10,000 per month. Okay. Unit B was also meant for self-occupancy. Unit B was also meant for self-occupancy, but again it has been not self-occupied but let out with effect from 1st October 2020 at the monthly rent of rupees 8,000 per month. Okay. After this, the municipal taxes are being given. Municipal taxes are given 40,000 rupees, which have been paid by the owner. Then the insurance premium is being given 4,000 rupees, and interest on borrowed capital is being given 20,000 rupees. ठीक है, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि आर के पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें यूनिट ए 60% फ्लोर एरिया कवर कर रहा है और यूनिट बी जो है आपका 40% कवर कर रहा है. ठीक है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू सी इज कि यूनिट ए जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही 8 मंथ्स के लिए, लेकिन 4 मंथ्स के लिए वो लेट आउट हो गई. तो इस यूनिट ए को हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी हम? यस, if you go to the first slide where we say that the house property is used for both purposes, let out plus self occupied, तो अगर वो एक पीरियड के लिए होती है तो उस केस के अंदर दिस इज ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. और अगर वो पोर्शन वाइज होती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट कर लेते हैं, और जो पोर्शन आपका लेट आउट होता है उसको हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट कर लेते हैं. यस, नो, मे बी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, so when the particular house is being let out as well as self occupied, तो उस केस के अंदर if it is a period wise तो उस केस में हम सेल्फ ऑक्यूपेंसी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते. वो प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी. और अगर पोर्शन वाइज है तो उस पोर्शन वाइज उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इफ यू सी द क्वेश्चन, तो इट सेज though it is given 60% of floor area and unit B 40%, so probably that will help us in finding out the proportion of the taxes and all. But otherwise if we see तो उस केस के अंदर
हमारा जो बाकी डिविजन है इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यूनिट ए भी चाहे वो 8 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, but again it has been let out, so it will be treated as let out house property. Similarly, unit B has been meant for self occupancy, but वो भी 1 अक्टूबर से हमने let out कर दी, तो वो भी हमारी let out house property ही मानी जाएगी, but सिर्फ हमने इनको यूनिट ए और यूनिट बी के फॉर्म में अलग अलग कैलकुलेट करना है. So if you people are writing the making the notes, तो आप ये नोट कर सकते हो. ठीक है. Now in this case, because it is the let out house property, तो let out house property में इंटरेस्ट की जो आपकी डिडक्शन है वो आपकी पूरी की पूरी अवेलेबल होती है. तो अगर वो सपोज 115 BAC में ऑप्ट करता तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता. रीजन बीइंग कि 115 BAC तो तब होता है जब उसमें हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन वहां पे हमें क्लेम नहीं मिलती. तो बिकॉज इट इज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो वो 115 BAC में ऑप्ट करे या नहीं करे, उसमें दोनों में आपकी इनकम जो है वो सेम रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट फॉर यूनिट ए फर्स्ट. यूनिट ए के अंदर आपकी इसमें आपका दिया हुआ है वी हैव नॉट गिवन एनी ऑफ द टू. हमें दिया हुआ है इसके अंदर हमारी लेट आउट हुआ वो 10,000 पे, तो एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10,000 इंटू 12, राइट. सो इट मीन्स दैट कि एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कि अगर हम पूरे साल के लिए उसको लेट आउट करते तो हमारा कितना रेंट आ जाता 10,000 इंटू 12, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमारा कितना है 10,000 इंटू 4. तो यूनिट ए में हमारा ERV और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड higher of the two shall become GAV. तो यूनिट ए के अंदर हमारी GAV आ गई 1,20,000. उस केस में हम सेल्फ ऑक्यूपेंसी एग्जाम्पशन को एज अ वैकेंसी या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. देन वी हैव टू रिड्यूस द म्यूनिसिपल टैक्सेस. अब नाउ म्यूनिसिपल टैक्सेस वैल्यू इज गिवन 40,000, बट जो यूनिट ए है वो 60% फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, तो इस केस के अंदर 60% ऑफ द 40,000 shall be allowed for deduction. So 24,000 will be allowed as deduction for municipal taxes. And then we will arrive at NAV 1,20,000 minus 24,000 कितना आएगा? I think 96,000. ठीक है. Then less deductions under section 24A में 30% of 96,000. Please calculate and let me know the figure. And then 24B interest on borrowed capital. तो interest amount हमें दिया हुआ है 20,000, तो वो पूरे घर का होगा, तो उसका 60% हम यहाँ पे ले लेंगे. That will come 12,000. How much is coming? 30% of 96,000? 28,800. 28,800. Can you please deduct these two values from 96,000? Yes. 96,000 में से 12,000 and 28,800 माइनस कर दो. Shall I open the calculator and check? Ma'am, 55,200. 55,200. See, calculation में अगर कहीं गलती होगी तो that is your fault. I am here just to tell you the concepts. ठीक है. तो यूनिट ए का हमने ERV हमारी अगर हम हाउस पूरे साल के लिए लेट आउट करते तो because for the 4 months we were able to let out this unit for 10,000 rupees rent. So in this case, if we would have let it out for 12 months, so we would have gotten 1,20,000, right?
So expected rental value is 1,20,000 in this case, but it has been let out for 4 months and actual rental value is 40,000. So as per the rules, we take a higher value of the expected rental value and the actual rent received. So 1,20,000 will become GAV in this case. Then municipal taxes are given in the question, but this particular unit carries 60% of the floor area. So 60% will be appropriated to this unit. Then after that, you receive NAV, which is 96,000. Then after that, you have to reduce the 30% of NAV plus interest given. Again, interest is given for the full of the house and 60% is appropriated to this particular unit. So we will reduce 60%. Now, if we calculate it for unit B, so in this case, unit B has been let out for 8,000 per month. So in this case, if we say expected rental value will be 96,000, 12 into 8, and actual rent received is from October till October, November, December, January, February, March. This is for 6 months. So this will become 48,000. So out of the two, higher value will become the GAV, right? So in this case, GAV is going to be 96,000. Municipal taxes are going to be, कितने थे municipal taxes हमारे? 40,000. So 40,000 का 40% area cover है. So I think this will become 16,000 if my calculations are correct. Then we will reduce this. Then we'll get NAV. Then 30% of NAV shall be reduced, and then we have the interest. Interest हमारा था 20,000. 20,000 का 40% यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लेंगे. So 8,000 यहाँ आ जाएगा. So you can do the calculation and you see this value, how much it comes. So the total income from house property will be from unit A plus unit B, 55,200 plus जितनी income आपकी यहाँ पे आएगी. Now in this case we have to see कि चाहे employee opt करे tax to be taxed under section 115 BAC or he doesn't opt, उसकी जो income है in both the option will remain same because it is the case of let out house property. सेल्फ ऑक्यूपेंसी एग्जम्पशन हम क्लेम नहीं कर सकते. अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड सपोज एक यूनिट लेट आउट नहीं होती है और एक यूनिट हमारी पूरी की पूरी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती और उस केस के अंदर अगर वो 115 PAC के अंदर टैक्स करना ऑप्ट करता तो उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती. सो देन वी हैड टू कंपेयर कि कौन सी ऑप्शन उसके लिए बेटर है कि 115 BAC के अंदर वो टैक्स हो, टैक्स के लिए ऑप्शन ले या नहीं ले. तो उस केस के अंदर फर्क पड़ता. बट बिकॉज इट इज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तो इस केस के अंदर हमारा चाहे वो 115 BAC के अंदर टैक्स हो या ना हो, स्पेसिफिकली फ्रॉम द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसकी टैक्स लाइबिलिटी में और उसकी इनकम में फर्क नहीं पड़ेगा. बट कंसिडरिंग इफ द इनकम from other sources or salary income and the other incomes are being given, so then we have to see. But अगर हमने house property में related choice करना है कि वो इसके लिए option ले या नहीं ले, then it will be focused on this particular concept only. Otherwise, overall income deductions or deduction income computed under the other heads will be taken into account and will be checked कि उससे 115 BAC के ऑप्शन लेने में फर्क पड़ रहा है या नहीं. बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेंगे कि 115 BAC के ऑप्शन हम ऑप्ट करें या नहीं. इस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको 115 BAC की ऑप्शन दी हुई है तो उसमें सिर्फ दो ही सिचुएशंस आ सकती हैं कि आप की जो इनकम है असेसी की इस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर वो ऑप्ट करता है तो कितनी इनकम होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में, और if he doesn't opt then what will be the income from house property. That is it. तो आपसे चॉइस नहीं पूछी जाएगी इस हेड में, but only the question would be given that would it make any difference in case of income from house property if he opts to be taxed under section 115 BAC or not. That's it. अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा रह गया था. वो कंसेप्ट था कि अगर हमारे पुराने टाइम में जो हमारे
अनरियलाइज्ड रेंट की हमने डिडक्शन ली थी। याद है ना कि अगर हम एक्चुअल रेंट में से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते थे उसमें से ERV से पहले कंपेयर करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर उस टाइम का अनरियलाइज्ड रेंट किसी लेटर ईयर में आपका रिकवर हो जाता है तो उस रिकवरी को उस साल की इनकम माना जाता है। बट उसमें एक एडिशन होता है कि उसके अंदर आपकी डिडक्शन अंडर एट द रेट ऑफ 30% अलाउड होती है, क्योंकि अगर हम उस अनरियलाइज्ड रेंट को पहले हम इनकम में इंक्लूड करते तो उसमें वो NAV का हिस्सा बनता और NAV का 30% हमें माइनस डिडक्शन मिल जाती। तो अगर अनरियलाइज्ड रेंट आपका लेटर ईयर्स में रिकवर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर उस साल की इनकम में वो ऐड हो जाएगा आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन ऑफ 30% फ्रॉम द अमाउंट सो रिकवर्ड, दैट्स इट। और दूसरी चीज क्या होती है जब हम बात करते हैं सेट ऑफ की, तो अगर एक हाउस से आपकी इनकम आ रही है और दूसरे हाउस से आपका लॉस आ रहा है तो वो आपकी इंटर हेड एडजस्टमेंट, आपकी विद इन हेड एडजस्टमेंट जो है वो आपकी सेट ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं ए का जो एक प्रॉपर्टी से है उसमें 1 लाख की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है लेकिन दूसरे हाउस में 25,000 का लॉस आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिम फॉर द असेसमेंट ईयर इज गोइंग टू बी 75,000। तो टोटल जो है वो आपने प्लस माइनस देख के कि टोटल हाउस प्रॉपर्टीज डिफरेंट हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है आपने उसको देख के उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वी विल बी मींस वी नॉट वी you will be practicing these questions, and after the practice questions we will be having a discussion class on Monday.